गुड इवनिंग एवरीवन। अभी सबको क्या कैमरा ऑन करने के लिए इनविटेशन भेजू क्या? हाँ, सी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग योर फेसेस। हाँ, तुम लोग क्या इतने कुछ ताजमहल नहीं हो और बहुत ऐसे हीरो हीरोइन नहीं हो कि तुम लोग को देखने के लिए हम लोग बोलते हैं। वी जस्ट वांट यू टू ओपन योर कैमरा सो दैट वी कैन सी आप लोग को समझ रहा है कि नहीं। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द new chapter, alcohol, phenols and ethers. ठीक है? So two chapters we have done from paper 1 and this is the second chapter from paper 2. ठीक है? Alcohol, phenols and ethers. After that again I will take paper 1 2 chapters. So I said two chapters paper 1, two chapters paper 2. Likewise we will take. ठीक है? So this is chapter number 11, alcohols, phenols and ethers. ठीक है? Alcohol, phenols and ethers. ठीक है बच्चों? So first of all, we will see now in the first chapter we have seen how the alkyl derivatives are there. ठीक है? Chloroethane, bromoethane, like that we have done. Yes. ये ऑर्गेनिक के बुक में ही लिखना है कि दूसरे बुक हाँ में हाँ, लिखना है yes नंबर yes, वाला? organic के book में लिखना है. Yes, this is organic chemistry only. Okay. So we will first of all see what is the meaning of alcohol, what is the meaning of phenol, and what is the meaning of ether. Those who are already there in the 11th standard from this class only, Science Bridge Academy, they must have understood all the nomenclatures properly because we have done more than 50 nomenclatures of everything. Okay, those who are new, for them it is alcohols. What are alcohols? Whenever you are having a functional group OH, it is called as alcohol. So when ROH, when alkyl groups are directly attached with the OH group, it is called as alcohol. But when aromatic compound is attached with OH, it is called as phenol. In both the cases, OH groups are there, but here you are having alkyl group and here you are having aromatic group. For example, I am writing here CH3OH. So you will call Miss, this is your alcohol. But if I'll give you here a compound like this, in which your OH is directly attached to this, you will call it as phenol. ठीक है? I am writing here CH3, CH2, CH2OH. आप बोलोगे Miss, this is alcohol, right? If I am writing here a compound like this, ठीक है? So when OH group is directly attached to the aromatic ring, it is called as phenol. आया समझ में? So what are alcohols? When alkyl groups, straight chain, alkyl groups are attached with the OH group, it is called as alcohol. And when aromatic ring is directly attached to the OH group, it is called as phenol. See the straight chain, CH3, CH2, CH2OH. So it is a straight chain. It is called as alcohol. You can see the aromatic ring directly attached to the OH group. It is called as phenol. ठीक है? अब if I am writing here an aromatic ring and CH2OH. Now tell me, this is alcohol or phenol? Alcohol, ma'am. Alcohol. What about others? Yes, Omkar, what अल्कोहल। it is? Is this your alcohol? Alcohol. Yes. Why? Because this OH group जो is OH not directly attached with aromatic ring. समझा? यहाँ पर सब बच्चे लोग हमेशा गड़बड़ करते हैं. Okay. Now here your OH group is not directly attached with the OH group aromatic ring. So it is actually your alcohol, which is called as benzyl alcohol. Its common name is benzyl alcohol. When I will teach you IUPAC, that time I will teach you how to find out that. इतना समझ आ गया? अच्छा.
अगर मैं ऐसे लिखूं CH3CH, here my benzene ring is there और aromatic ring is there, CH2OH, अब बताओ ये अल्कोहल है या फिनॉल? Alcohol. Alcohol, This is ma'am. also alcohol. Very good. Because OH is not directly attached with this. If I'm writing here a compound like this, okay, 3 aromatic rings are there, and here it is directly attached with OH. Now this is your phenol. सबको समझ आ Phenol. गया? Yes. सबको Yes, समझ ma'am. आ गया Yes, अच्छे से? What is the difference between alcohols and phenols? Sure? Okay. अब we will talk about, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं एकदम प्रॉपर डेफिनेशंस बताती हूँ, ठीक है? अल्कोहल्स, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन? करेक्ट? अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड in which molecules contain hydroxyl group. This group is called as hydroxyl group, which is attached to the saturated carbon atom. मतलब the valency of carbon is 4 and one valency is attached with OH. That is called as alcohol. And what is phenol? When phenols, or it is also called as aromatic alcohols. Okay, phenols and aromatic alcohols. So what is happening over here? If I am writing my aromatic compounds or aryl compounds, aryl, इसको aryl भी बोलते हैं, ठीक है? Aryl or aromatic compounds are directly attached to the OH group. It is called as phenol. ठीक है? सबको समझ आ गया alcohols and phenols? ठीक है? Now the classification of alcohol, phenols and ethers are given. If I am having only one OH group, so it is called as monohydric compound. What it is called? Monohydric. Mono means one. Monohydric compound. When you are having two OH groups, it is called as dihydric. 3 होगा तो it is called as trihydric, and more than that it is called as polyhydric. Hydric का मतलब क्या है? OH group, ठीक है? hydroxyl group. So it is called as monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric. ठीक है? अभी देखो, I am writing one compound, you have to tell me whether it is monohydric, dihydric, trihydric, polyhydric. ठीक है? First one is CH3CHOH, second one is CH2OH, CH2OH, third one I am writing here CH2OH, then CHOH, and then CH2OH, and then fourth one, चलो ठीक है, I am writing here this compound with one OH group, this compound with 3 OH groups, ठीक है? So you have to just tell me it is monohydric, dihydric, trihydric, polyhydric. So first one you are having only one OH group, so it is called as monohydric. Here 2, so it is called as dihydric alcohol. Here it is 1, 2, 3, it is called as trihydric alcohol. Here it is only one OH, so it is called as monohydric phenol. Here 1, 2, 3, so it is called as trihydric phenol. सबको समझ आया? Yes or no? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. ठीक है? अभी देखो, हाँ, मैं लिखती हूँ यहाँ पे अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है? अब मुझे बताओ कि ये जो आपका OH है, ठीक है, it is attached to the carbon atom which is sp3. Am I right? sp3 मतलब single bond, correct? Your alcohols are attached to the carbon atom. हमने किया था ना allylic last time किया था, देखो alkyl halide में. So when your carbon atom is attached to the single bond, तो OH किसको attached है? Carbon atom which is having a single bond. So this carbon atom which is directly attached to the OH group is called as sp3 hybridized carbon atom. ठीक है? It is called as sp3 hybridized carbon atom. On the basis of that, you can classify them primary, secondary, and tertiary. अभी देखो, अगर मैं लिखती हूँ CH2OH, so you'll call it as primary alcohol. CHOH is called as secondary alcohol.
and COH is called as tertiary alcohol. जैसे आपने किया था CH2X is called as primary alkyl halide, CHX is called as secondary, CX is called as tertiary. वैसे ही CH2OH कहीं पर भी आपको दिखाई देता है तो it is called as primary alcohol. CHOH is called as secondary alcohol. COH is called as tertiary alcohol. इतना सबको समझ आया alcohols का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone, any questions so far? अच्छा, अभी मुझे बताओ, हाँ तुम लोग एक CH2 डबल बॉन्ड CHOH बताओ, ये कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2. Very good. This is sp2 hybridized carbon atom. Correct? Okay. CH2 डबल बॉन्ड CH2OH. अब बताओ ये वाला कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3. sp3. और इसके बाजू वाला sp2. sp2. आया समझ में? तो कैन आई कॉल दिस एज allylic alcohol? Yes or no? This is your Yes, allylic ma'am. alcohol. Yes, याद आया ma'am. लास्ट टाइम हमने किया था? When functional group X के जैसा ही है ना, same. So when your X is attached to sp3 carbon atom, which is in turn attached to sp2 carbon atom, it is called as allylic alcohol. ठीक है, और ये अल्कीन वाला जैसे हो गया ना, इसको आप क्या बोलोगे? अल्कीन जैसा. तो ये अभी फिलहाल नहीं है आपके सिलेबस में, तो इतना ध्यान मत दो. ठीक है, अब बेंजाइलिक अल्कोहल सबको समझ आ गया. व्हाट इज बेंजाइलिक अल्कोहल? ये देखो CH2OH अल्कोहल है ना ये, एंड यू आर अटैच्ड विद द sp3 carbon atom. This carbon atom is sp3, so it is called as benzylic alcohol. समझा सबको अच्छे से? Yes, ma'am. ठीक है, अभी देखो मैं Yes, कुछ ma'am. कंपाउंड्स लिखती हूँ, आपको बताना है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. अभी आपको ये मालूम है कि ये हो गया प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH3OH, तो आप इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल. यस और नो? दिस इज योर सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल. अभी लिखा ना, ये देखो किधर गया रे? हाँ, CHOH इज सेकेंडरी. तो आप देख रहे हो CHOH इज सेकेंडरी and it is attached to the benzyl group, so it is called as secondary benzylic alcohol. आया सबके समझ में? क्लासिफिकेशन इतना? अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में Yes, किसी को ma'am. कुछ डाउट है? एकदम इजी है, एकदम इजी. खाली याद रखना ROH आया तो अल्कोहल, एंड एरोमेटिक OH आ गया तो फिनॉल. मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक तो तुम लोग को नाम से समझ में आ गया. 1OH group, 2OH group, like that. सिर्फ they will ask you when it is attached, when OH is directly attached to this carbon atom, it is sp3. और अगर सपोज आपको ये वाला कंपाउंड दे दिया और पूछा कि OH is attached to which carbon atom, it is sp3. sp3 is in turn attached with sp2 hybridized carbon atom, so it is called as allylic alcohol. और ये हो जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल. ठीक है, अभी मैं ना कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ कर रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी allylic अल्कोहल है या बेंजाइलिक अल्कोहल है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. CH2 double bond CH, CH2OH. Second one is CH2 double bond CH, CH, CH3OH. Third one is CH2 double bond CH, then C, CH3, CH3OH. ठीक है, fourth one I am writing here as C, CH3, CH3OH. Ready? Ready everyone? आप Yes, लोगों को ma'am. मिलेगा 1 minute. You all have to type the answers in the chat box. नंबर दे दूं क्या मैं? लाइन से लिख दो जो भी है. ठीक है, प्राइमरी allylic, सेकेंडरी, टर्शरी, allylic और बेंजाइलिक. ठीक है, you can write down P for primary, S for secondary and T for tertiary. और allylic है तो A लिखो, बेंजाइलिक है तो B लिखो. मतलब अगर PA लिखा तो प्राइमरी allylic अल्कोहल, तो मैं समझ जाऊंगी. ठीक है, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है. रेडी? कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग. गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. मैम For इधर चैट primary, बॉक्स में टू एवरीवन आ रहा है. मेरे नाम पे जाके करो ना ये क्लिक. मैम खाली नहीं है, टू सब एवरीवन लोग का के लिए. ऑप्शन है. नहीं, नहीं हो ऐसे रहा है कैसे हो गया रे?
ओ, ऐसे कैसे हो गया? शायद चेंज हो गया क्या जूम पूरा? मेरे से ठीक है, आपने चलो। अपडेट किया था क्या का? मैं कुछ नहीं करती हूँ रे, मेरे फोन में पता नहीं क्या होता रहता है, डब्बा अगर फोन है अपडेट मेरा। आपसे अपडेट हुआ होगा ना तो फिर हो गया होगा। तुम लोग को भी ऐसे ही दिख रहा है? हाँ, हम लोग को एवरीवन ही आ रहा है। अच्छा, ठीक है, चलो एवरीवन में ही टाइप कर दो, कोई नहीं, दिखने दो सबको भी, क्या कर सकते हैं। हाँ, अरे मुझे भी एवरीवन ही आ रहा है, मुझे भी बाकी सब लोग नहीं दिख रहे, शायद कुछ नहीं, चैटिंग सुनो से। सुनो 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 हुआ। सब लोग को बोलो कि ये मेंबर्स है ना, हम्म। मेंबर्स में जाके आपके नाम के ऊपर टच करने के लिए उधर, फिर ओके, आपको मेंबर्स में जाके मेरे नाम पे जाके टच करो तो यू कैन। अच्छा, ओके, मेरे को नहीं आया ऐसा कुछ तो फिलहाल, बट बाकी के लोग कर सकते हैं। चलो, गिव योर आंसर्स। यू विल गेट जस्ट 2 minutes फॉर दिस। हाँ, कम ऑन, फटाफट आंसर्स चाहिए मुझे। एवरीवन में आ रहा है तो एवरीवन में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। ओके, वेरी गुड, सबने बराबर आंसर दिया, वेरी गुड। उर्मिल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बराबर है बच्चा, लेकिन कौन सा ग्रुप है वो, अलाइलिक है कि बेंजाइलिक है? कम ऑन, लास्ट 1 minute। जो लोग आंसर नहीं करेंगे ना, वो पूरा चैप्टर 10 बार लिखेंगे, ठीक है? एंड आई हैव अ टेक्निक टू चेक योर होमवर्क्स। और ये संडे टेस्ट होएगा, हाँ, डेफिनेटली होएगा। मैं आज ही पेपर बना देती हूँ और सर को भेज देती हूँ, और आप लोगों के एमसीक्यूज का मार्क्स मैं आपको कल दे दूंगी, पक्का। मैं थोड़ी ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैंने चेक नहीं किया। टुडे आई विल चेक, आई विल सेंड यू द मार्क्स आल्सो by tomorrow morning, and this week there will be a test on halogen derivatives. मेसी आपने चलो, चैप्टर चालू किया है ना आज से? क्या बच्चा? ये आपने न्यू चैप्टर चालू किया है ना? एक्चुअली मैं पिछले लेक्चर हाँ में हाँ थी। हाँ, यस यस, अल्कोहल फिनॉल्स न्यू चैप्टर है, यस। हाँ, तेरा ज्यादा मिस नहीं हुआ है प्रांजल, वो मैंने खाली यूजेस ही पढ़ा है उसमें ज्यादा, हाँ और मैंने ऐसे वो सिंपल। नोट्स ले लिए हाँ, समीक्षा से, यस तो यस यस, इट वाज वेरी सिर्फ इजी। लास्ट था। हाँ मिस। वो जो एरोमेटिक वाला चैप्टर में मैंने सिखाया था देख हाँ, लास्ट ईयर, तो इधर वैसा ही है सेम तो। मिस रुको मैं हाँ दिखाती हूँ आपको, इधर तक है ना, ये है ना मैम वो लास्ट। हाँ, डिलीट हो यूजेस गया तक। है, क्या डिलीट 25% होगा? रिड्यूस में। जाने दे, अभी पढ़ा दिया मैंने, अभी ये वो वैसे भी एंट्रेंस ये में पढ़ना ही है ना सब। मेरे को बहुत कंटा रहता है वो रिड्यूस क्वेश्चन लिखने को। ये है ना लास्ट वाला हाँ, पार्ट, यस इधर तक ही है ना? यस, हाँ करेक्ट। मिस। चलो, हो गया, सबका आंसर आ गया। चलो, नाउ यू कैन सी, पहले ढूंढेंगे क्या है ये। दिस इज प्राइमरी and this is your allylic group, so this is primary allylic alcohol, सबका right है? Then you have to search this, what it is. It is your secondary allylic alcohol. This is secondary allylic alcohol. This is COH, called as tertiary allylic alcohol. Am I right? Tertiary allylic alcohol. This is COH. So this is tertiary benzylic alcohol. सबको आ गया अच्छे से समझ में? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? Those who are new admissions, those who were not there in the 11th standard, any questions, any doubts?
शुड आई प्रोसीड? अभी मैं पहले आपको इथर्स का भी पढ़ाती हूँ और फिर उसके बाद लिखेंगे सबका डेफिनेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है? चलो अभी वी विल डू नाउ अल्कोहल फिनॉल्स तो क्लियर हो गया सबको. नाउ वी विल डू फॉर इथर्स, ठीक है? इथर्स आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप आर ओ आर, बीच में सिर्फ एक ओ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ईथर, ठीक है? तो ethers are the compounds which contain oxygen which is bonded to two alkyl groups, ठीक है? which is bonded to two alkyl groups. ethers को और क्या कहा जाता है? ethers are also called as anhydrides, anhydrides of alcohols, ठीक है? they are also called as anhydrides of alcohols. तो अभी देखो मैंने क्या लिखा, ROR, मतलब ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है बच्चों. इफ आई एम राइटिंग हियर ROR डैश, मतलब मेरा दोनों अल्काइल ग्रुप अलग भी हो सकता है. आई कैन राइट डाउन हियर AROAR, मतलब एरोमेटिक दोनों भी सेम है. आई कैन ऑल्सो राइट डाउन हियर AROAR डैश, मतलब मेरा दोनों एरोमेटिक अलग भी हो सकता है. दिस इज वेरी क्लियर. दिस इज अबाउट दी ethers, right? So अभी ethers का कैसे क्लासिफिकेशन किया है? Ethers have been classified as simple ethers or they are also called as symmetrical ethers, या फिर we are having here mixed ethers or unsymmetrical ethers. समझा? Simple ethers or symmetrical ethers, या फिर we are having here mixed ethers और unsymmetrical ethers. अभी आप लोग मुझे देखना और बताना. CH3O CH3 C2H5 O C2H5, इसको मैं कहूंगी कि ये सिंपल ईथर है. आई एम राइटिंग हियर CH3O C2H5, या फिर मैंने लिखा C6H5O CH3. नाउ आई विल कॉल दिस एज मिक्स्ड ईथर. क्यों ऐसे लग रहा है आप लोग को? By observing this, can you tell me why it is simple and why it is mixed? देखो ध्यान से. मैम सिंपल में दोनों साइड में CH3 मतलब सिमेट्रिकल है, whereas अनसिमेट्रिकल अलग है दोनों साइड से. Very good, perfect answer. We have this oxygen on both the sides. We are having same group. You can see on both the sides we are having same group. So it is called as symmetrical ether. Mixed ether में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के दोनों साइड पर अलग अलग ग्रुप है. One side you are having methyl group, another side you are having ethyl group. Here you are having a benzyl group, here you are having CH3 group, right? So that is why it is called as mixed ether. बस इतना ही इसका classification था. I hope everybody understood this. Any questions ma'am. in alcohol, phenols and ethers का classification? 100% sure हो गया? पक्का? हाँ, वो जो मैंने ये वाला लिखा था ना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये मैं भूल गई बताना. दिस इज कॉल्ड एज विनाइलिक अल्कोहल, है ना? इसको विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे ना, क्योंकि वो विनाइलिक हलाइड था. एंड दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इट इज आल्सो देयर. समझ आ गया सबको अच्छे से? ethers. So what are ethers? Ethers are the group which is containing oxygen, and on both the sides of the oxygen there will be alkyl groups or aryl groups. ठीक है? Alkyl groups can be same also and aryl groups can be same also, or it can be different also. अगर दोनों साइड पर सेम ग्रुप है, so it is called as simple ethers or symmetrical ethers, और अगर दोनों साइड पर अलग अलग ग्रुप्स है, so they are called as mixed ethers or unsymmetrical ethers. Is it very clear? सबको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम. Any Yes, ma'am. questions? चलो फटाफट रिप्लाई करो. गोम्स, those who are new, come on. Raj, Sankalp, Vignesh, is it very clear to everybody? Okay, ठीक है. चलो अभी ये आपको समझ में आ गया ना, तो पूरा चैप्टर बहुत इजी. और अल्कोहल फिनॉल्स HDA से भी इजी चैप्टर है, उसमें बहुत ऐसे सिंपल रिएक्शंस हैं. सिर्फ आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर्स है, दैट इज योर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अमाइन्स, तो वो मैं एकदम आराम से आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी. ठीक है?
चलो अभी सबसे पहले हेडिंग लिखो बुक में, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, चैप्टर नंबर 11। First definition, alcohols. First definition, alcohols. ब्रैकेट में लिखो ROH, ROH. In bracket write down ROH. लिखो, alcohols are organic compounds. Alcohols are organic compounds whose molecules contain hydroxyl group, in bracket dash OH, in bracket dash OH, attached to a saturated carbon atom, attached to a saturated carbon atom. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेज पे लिखती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3OH, CH3, CH2OH, etc. CH3OH, CH3, CH2OH, etc. This is called as methyl alcohol, and this is called as ethyl alcohol. Alcohol का definition is clear to everybody? Yes, miss. Okay, चलो. Yes, ma'am. Yes. अभी next definition लिखो बच्चों, phenol. ठीक है, phenol ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? AROH. Write down. मैम हाँ, मैम अनसैचुरेटेड को उससे भी हो सकता है ना? unsaturated से भी हो सकता है, but here they have said generally it is attached to the saturated carbon atom. सिर्फ vinylic alcohol में it is attached with unsaturated. थैंक यू मैम. अभी किया ना हम लोगों ने ये विनाइलिक वाला, ये देख, सिर्फ इसमें वो अनसैचुरेटेड कार्बन को अटैच्ड है, अदरवाइज इट इज अटैच्ड टू द सैचुरेटेड कार्बन एटम. मतलब जनरल जो नॉर्मल अल्कोहल है उसका फैमिली भी है. ओके, यस मैम. यस, चलो लिखो अभी नेक्स्ट लाइन. फिनॉल कंटेन्स अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. फिनॉल कंटेन्स a hydroxyl group. Phenol contain a hydroxyl group directly attached to the carbon atom of benzene ring. Directly attached to the carbon atom of benzene ring. Write down, for example, ये रहा आपका phenol which is directly attached to benzene ring. या फिर ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं एक्चुअली में नेफ्थॉल. ठीक है, नेफ्थाबॉल्स जो होते हैं ना उसका फॉर्मूला है ये नेफ्थॉल. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल. क्लियर हो गया सबको? अल्कोहल फिनॉल इज वेरी वेरी क्लियर. when it is directly attached to the carbon atom in a saturated means long chain, so it is your alcohol. And when it is attached to the carbon atom, ये रहा, ये carbon atom,
of benzene ring. Benzene का carbon atom है ना, directly attached to the carbon atom of benzene ring. It is called as phenol. हो गया? मैम Yes. मैम नेफ्था बोल्स तो नेफ्थलीन होता है कि नेफ्थेनॉल होता है? नहीं, actually वो होता है nephthol. The spelling is nephthol. So it is actually a phenol because in this OH group is directly attached to this. तो इसमें भी दो होता है, एक होता है अल्फा नेफ्थॉल, एक होता है बीटा नेफ्थॉल. अल्फा नेफ्थॉल में OH ग्रुप इधर होगा फर्स्ट पोजीशन पे, एंड बीटा नेफ्थॉल पे OH होता है सेकंड पोजीशन पे. तो आपका जो अल्फा नेफ्थॉल होता है वो ब्लैक कलर का पाउडर होता है, एंड बीटा नेफ्थॉल इज पिंक कलर्ड पाउडर. समझा? और जो नैफ्थलीन होता है ना, जो नैफ्थलीन हम घर पे यूज करते हैं, इट इज जस्ट अ हाइड्रोकार्बन. ये इतना ही. दैट इज योर नैफ्थलीन, जो आपका नेफ्था बॉल्स है. समझा? दिस इज योर नैफ्थलीन. यस मैम. दिस इज नेफ्थॉल. तो ये जनरली यूज होता है किधर? लेबोरेटरी में, टू डिटेक्ट वेदर योर कंपाउंड इज अल्कोहल, फिनॉल और ईथर. वो बाद में बताती है, वो सब है आगे, सारे टेस्ट वो सब है. सो दैट आई विल टेल यू. अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, डिस्टिंग्विश करना आ गया. अभी अगर किसी ने आपको अल्कोहल दिया तो उसमें कंफ्यूज तो नहीं हो गया कि यस दिस इज अ अल्कोहल एंड दिस इज अ फिनॉल. ठीक है? चलो, थर्ड डेफिनेशन, एरोमेटिक अल्कोहल. थर्ड डेफिनेशन इज aromatic alcohol. बोलू? When, Miss, wait. okay, aromatic alcohol. Yes, miss. Yes, write down. When hydroxyl group is present, when hydroxyl group is present in the side chain of, when the hydroxyl group is present in the side chain of aromatic ring, in the side chain of aromatic ring, the compound is termed as aromatic alcohol. The compound is termed as aromatic alcohol. लिखो, for example. अभी देखो यहाँ पे आपका सब confusion दूर हो जाएगा. क्या बोला है यहाँ पर? When the hydroxyl group is attached to the side chain of the aromatic ring. तो ये आपका अल्कोहल है कि फिनॉल है? दिस इज अल्कोहल, बट इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक अल्कोहल. समझ आ गया सबको अच्छे से? दिस इज योर अल्कोहल कॉल्ड एज एरोमेटिक अल्कोहल. यहाँ तक कुछ डाउट है? एनी क्वेश्चंस? नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ alcohols and phenols. ठीक है? चलो, कितना आएगा? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, दोनों का क्लासिफिकेशन है. ठीक है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक फिनॉल. ठीक है? सो यू आर गोइंग टू राइट डाउन हियर मोनोहाइड्रिक. इट कैन बी अल्कोहल ऑल्सो और फिनॉल ऑल्सो. समझा? सो इट इज डाइहाइड्रिक. दिस इज trihydric, and the last one is polyhydric. This is for both monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric. It can be alcohol also and phenol also. तो यहाँ पे क्या होगा? आप क्या लिखोगे? 1 OH group is present. यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो. 2 OH groups are present. Here 3 OH groups are present, and here
many OH groups are present. Is it okay? Hello. Yes मैम. हाँ Yes, ठीक ma'am. है. Yes, ma'am. चलो मैं भी एग्जांपल्स लिखती हूँ. हाँ तुम लोग वो पूरा डेफिनेशन खुद से लिख दो. CH3 CH2 OH एक OH ग्रुप है. Then we are writing here a benzene ring with OH. एक ही OH है तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल. डाइहाइड्रिक का एग्जांपल यहाँ लिखती हूँ. CH2 OH CH2 OH बॉन्ड्स बराबर से बना हुआ. दिस इज डाइहाइड्रिक. और फिनॉल कैसे हो जाएगा बच्चों? दो OH ग्रुप रहेगा मेरे पास. सो वन इज हियर एंड अनदर वन इज हियर. ठीक है, ये हो गया आपका डाइहाइड्रिक. ट्राइहाइड्रिक में क्या करेंगे हम? आई विल टेक CH2OH देन CHOH देन CH2OH. ये हो गया ट्राइहाइड्रिक. और फिनॉल कैसे बनाऊं मैं? आई विल ड्रॉ अ फिनॉल लाइक दिस. वन OH इज हियर, दूसरा इधर बना देती हूँ. चलो सेकेंड OH इज हियर एंड थर्ड इज हियर. पहले इतना लिखो. पॉलीहाइड्रिक का थोड़ा जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखती हूँ. ये क्लासिफिकेशन सबको समझा? यहाँ पे लिखो. हाँ, डाइहाइड्रिक 2 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 3 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट, मेनी OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट. दीज आर द एग्जांपल. 1 2 मोनोहाइड्रिक का ये 1 2, डाइहाइड्रिक का ये 1 2, ट्राइहाइड्रिक का एग्जांपल है. Just let me know once you are done. Done मैम. Everybody finished? नो मिस. अभी okay. Yes मैम. नो मैम. चलो फटाफट लिखो एकदम फास्ट. कल हम लोग IUPAC करेंगे. हाँ अल्कोहल का बहुत सारा. डन. यस मैम. अभी पॉली का क्या लिखा आपने? मेनी OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट. तो उसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ. ठीक है. CH2OH CHOH 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 CH2OH बहुत सारे है ना. सो इट इज कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल. और फिनॉल का कैसे लिखेंगे हम? मोर देन 3 आई विल राइट. सो वन इज हियर, another one is here, third is here, and suppose fourth is here. ठीक है. So these two are the examples of polyhydric alcohols and phenols. So this classification is on the basis of OH groups present on the carbon atom and benzene ring. मिस Yes. इसे क्वेश्चन है. हाँ बोलो ना. मिस डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक में एक ही कार्बन को दो अलग अलग OH ग्रुप अटैच रह सकते हैं क्या? हाँ एक ही कार्बन को दो OH ग्रुप अटैच्ड हो सकते हैं. दैट इज द करेक्ट थिंग. सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज डायोल. ठीक है. वो भी अटैच्ड हो सकता है लेकिन कार्बन का वैलेंसी बिगड़ने के चांसेस है ना. सो दिस कंपाउंड विल बी हाईली अनस्टेबल. मतलब ऐसे तू बोल रहा है ना. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है. सो एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज डायोल. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके गुड क्वेश्चन इट वाज. चलो हो गया बच्चों. फिनिश्ड. हेलो हेलो हेलो. Yes मैम. ओके चलो अभी हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. चलो अभी बुक को ऐसे आड़वा करो. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही क्या है? बोलो जल्दी.
in which it is containing only one OH group. OH group. Yes. चलो अभी ये क्लासिफाई हो जाएगा दो पार्ट्स में, ठीक है। एक पार्ट में मैं क्या लूंगी, अल्कोहल्स कंटेनिंग एक मिनट, मैं इसका जरा ब्राइटनेस अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3 carbon OH, meaning समझा, when OH is attached to the carbon atom containing sp3 carbon atom, is it right? ठीक है, तो इसके तीन एग्जांपल्स है ना हमारे पास। एक तो था CH2OH, इसको मैं क्या बोलूंगी, प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा था हमारे पास CHOH, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल। एंड थर्ड वन मेरे पास है COH, इट इज कॉल्ड एज टर्शरी अल्कोहल। बोलो बराबर है? So your OH is attached to the carbon atom which is sp3 hybridized. Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। इसी के और भी दो है ना, अलाइलिक भी इसी में आएगा, बेंजाइलिक भी इसी में आएगा, सिर्फ विनाइलिक अलग आएगा ना। This is called as primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. दूसरा अभी हमने किया अलाइलिक अल्कोहल, यस और नो? अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल में क्या हम लिखेंगे बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, तो दिस इज प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल, यस और नो? ये देखो आपका कार्बन क्या है, sp3 which is in turn attached with sp2। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है सबको? CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, CH CH3OH, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल। और टर्जरी में कैसे लिखूंगी, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन आफ्टर दैट C, एक CH3 इधर लगाओ, एक CH3 ऊपर लगाओ और एक हो गया OH, तो ये हो गया आपका टर्जरी अलाइलिक अल्कोहल। दिस इज वेरी वेरी क्लियर, समझा? दिस इज नॉर्मल प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्जरी अल्कोहल। ये हो गया प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल, सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल, टर्जरी अलाइलिक अल्कोहल। अलाइल ग्रुप कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH is called as allyl group. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अभी ये इसमें sp3 में ही है, देखो दिस कार्बन इज sp3 एंड दिस इज sp2। ये कार्बन आपका sp3 है, ये वाला sp2। दिस कार्बन इज sp3, दिस कार्बन इज sp2। आराम से करो, कोई गाय नहीं है, समझ के। कैसे ढूंढने का, CH2OH प्राइमरी, ओके, किसको अटैच्ड है, डबल बॉन्ड को, सो इट इज प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल। CHOH है, यस, सेकेंडरी, इट इज अटैच्ड विद द डबल बॉन्ड, सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पे, COH टर्जरी है, यस, इट इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्ड, सो इट इज कॉल्ड एज टर्जरी अलाइलिक अल्कोहल। हो गया इतना बच्चों? हेलो हेलो हेलो, फिनिश्ड? Yes, Ma'am, ma'am. एक second. यस, हाँ हाँ, ओके। अभी बेंजाइलिक भी इसी में आएगा ना। एक बार क्लासिफिकेशन है। Classification of monohydric alcohol. Classification of monohydric alcohol. So first is carbon attached to OH and this carbon is sp3 hybridized. तो ये सब sp3 है ना, OH is attached to all sp3 hybridized carbon atom. Yes or no? अभी इसी में थर्ड वाला भी आएगा, कौन सा आएगा बोलो, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी आएगा इसमें भी।
आई एम राइटिंग हियर बेंजीन रिंग CH2OH। ये देखो ये कार्बन आपका क्या है, sp3, so it is primary benzylic alcohol। अभी किया ना अपने क्लासिफिकेशन। देन बेंजाइल ग्रुप with CH, इधर हो गया CH3 and OH, this is secondary benzylic alcohol। और थर्ड वाला आप लिखो, this is CH3 CH3OH, this is called as tertiary benzylic alcohol। In all these cases OH is attached to the carbon atom which is sp3, OH is attached to the carbon atom which is sp3, OH is attached to the carbon atom which is sp3। ये है आपका पहला क्लासिफिकेशन। I hope this is very very clear। मैम अलाइलिक बताओ ना सर लिखने का। बाकी है लिखने का। Hinal, is it very very clear? Aditi, Gauri, Niti, Samiksha, Sanjay, Vedant। मिस ओके ओके, हो गया तन्मय, फिनिश्ड। ओके, इज इट डन? चलो अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अल्कोहल्स कंटेनिंग अभी कौन सा कार्बन एटम कंटेनिंग sp2 कार्बन OH, मतलब OH is attached to the carbon atom which is sp2, तो इसका एक ही है ना, दिस आर आल्सो कॉल्ड एज विनाइलिक अल्कोहल, है ना। तो क्या लिखूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो ये जो कार्बन है इट इज कॉल्ड एज sp2। हो गया, खत्म। OH is attached to sp2 hybridized carbon atom which is also called as vinylic alcohol। विनाइल मतलब विसिनिटी, विसिनिटी मतलब बाजू में, एकदम नजदीक, तो ये एकदम बाजू में है ना इसके, that is what is called as vinylic alcohol। This is your classification of alcohol, is it very clear? अल्कोहल फिनॉल में कुछ डाउट है? चलो फटाफट इथर का भी लिख देते हैं, तो कल हम लोग डायरेक्टली IUPAC चालू करेंगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हेडिंग ईथर्स। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज ईथर्स। बोलू? ईथर्स आर कंपाउंड्स, ethers are compounds which contain an oxygen atom, which contain an oxygen atom bonded to two alkyl groups or two aryl groups or one alkyl and one aryl groups। बोलो बराबर है कि नहीं? It can be attached to two alkyl groups, it can be attached to two aryl groups, it can be attached with one alkyl and one aryl groups, yes or no? तो टू Yes, अल्काइल ग्रुप्स के यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ROR या फिर ROR डैश, ये हो सकता है। फिर एरोमेटिक में क्या आएगा, AROAR या फिर AROAR डैश।
और ये क्या हो जाएगा, ROAR. यस और नो? इज इट वेरी वेरी क्लियर? 2 अल्काइल ग्रुप, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप अलग हो सकते हैं. अराइल ग्रुप, दोनों सेम हो सकते हैं या दोनों अलग हो सकते हैं. अराइल एंड अल्काइल, तो एक अल्काइल एक अराइल. हुआ इतना लिख के? फिनिश्ड? हेलो? यस मैम. हाँ, अभी लिखो, नीचे लिखो इसमें, या ये Yes, सेम ma'am. पॉइंट में. ethers are organic oxides, underline. ethers are organic oxides. ethers are organic oxides. Next line. ethers are considered as, very very important, underline करना है एक बार, 4 मार्क्स के लिए आया ये क्वेश्चन. ethers are considered as anhydrides of alcohols. Ethers are considered as anhydrides of alcohols. Ethers are considered as anhydrides of alcohols. क्लासिफिकेशन लिखा दूं क्या? 5 मिनट है, हो जाएगा. खाली सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल लिखना है. लिखेंगे अभी कि कल लिखना है? हेलो? चलेगा अभी. अभी चलेगा, ठीक है, चलो फटाफट लिखो देन. क्लासिफिकेशन ऑफ ethers. चार्ट बनाओ फटाक से. फर्स्ट इज सिंपल ethers, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? सिमेट्रिकल ethers. दूसरी जगह क्या लिखना है? मिक्स्ड ethers और अनसिमेट्रिकल ethers. सिंपल ethers और सिमेट्रिकल, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल. हो गया? चलो अभी मैं खाली Yes, ma'am. एग्जांपल दे दूंगी तो समझ आ जाएगा ना. ROR और क्या? AROAR, ये सिंपल में आते हैं, ठीक है. तो CH3OCH3 या फिर C6H5O C6H5, ये सब में किस में आ गए? सिंपल में, है ना. C2H5O C2H5, ये किस में आया? सिंपल में. ऑक्सीजन के दोनों साइड पर exactly similar groups are there, so these are called as simple ethers. हो गया लेफ्ट साइड बच्चों? Yes, ma'am. यस. चलो Yes, अभी मिक्स्ड ईथर में क्या लिखेंगे? ROR डैश हो सकता है, या फिर AROAR डैश हो सकता है, या फिर AROR भी हो सकता है ना. ये भी तो मिक्स्ड ही हो गया. यस और नो? तो चलो अभी CH3O C2H5, एक ये हो गया. या फिर मैं लिख सकती हूँ, एरोमेटिक का एक ही एग्जांपल देती हूँ. चलो C6H5OCH3. सो ऑक्सीजन के दोनों साइड पर you are having different groups, so they are called as mixed ethers or unsymmetrical ethers. ठीक है. So today we have done what is actually alcohols, what is phenol, what is the difference between alcohols and the phenols, their classification, what is ether, and the classification of ether. Any questions for today's lecture? Any doubts? मैम मैम ethers are considered as anhydrides of alcohols का मतलब कैसे हुए वो? अल्कोहल कैसे लिखता है तू? अल्कोहल इज ROH, तो अनहाइड्रेट मतलब विदाउट हाइड्रोजन. So you are writing there R dash, or you are writing R, so that is called as anhydrides of alcohol. Anhydride means without water, oh sorry, without hydrogen. Hydride Thank is you, ma'am. hydrogen. Yes. Okay, finished everyone? मिस Yes.
वो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का पेज दिखाओ ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, ये वाला तो नहीं वो पीछे वाला। ये हाँ एक सेकंड। हाँ हो गया। yes. Which lecture you have now? बायोलॉजी। Okay, okay. मतलब थोड़े लोगों को रहेगा, ठीक है। चलो tomorrow also we'll meet same timing 5:30 to 6:30 and tomorrow we will do IUPAC। चाहिए तो heading लिख के रखो IUPAC nomenclatures। तो tomorrow we will do only IUPAC, ठीक है। चलो bye bye, take care everybody, have a good day and start Bye, preparing ma'am. for Bye, ma'am. Thank you. HTA। yes, bye bye। बाय मैम। Hello. Hello.